So this is called semiconductors because the bands between impurity and field is very small, or forbidden energy gap is very small, then it is called semiconductors, and its conductivity depends on temperature. If temperature will be greater, then its conductivity also will be greater. If temperature is lower, conductivity will be lower. So silicon and germanium, so these types of behaviors and are called intrinsic semiconductors. The conductivity of these intrinsic semiconductors are too low to be practical use. Their conductivity is increased by adding an appropriate amount of suitable impurity. This process is called doping. So very important for you, the process is called doping. So I am copying here. This is called doping. The conductivity is increased by adding an appropriate amount of suitable impurity or foreign materials or foreign substances is called doping. So this process is called doping. So see the next page that is given about doping. So this process is called doping. So doping can be done with an impurity which is electron rich or electron deficient as compared to the intrinsic semiconductor silicon and germanium. Such impurity introduce electronic defects in them. So due to doping, some properties of solid changes. That's why it is studied in solid state. Otherwise it is pure physics. ये फिजिक्स में भी दिया हुआ है, क्लास 12 का फिजिक्स में भी मिलेगा, प्रोजेक्ट भी इसमें रहता है, और एक क्या उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर. So step down transformer, step up transformer, and a lot of functions of transformer is controlled by these semiconductors. So you will study this process, that is doping, in physics in more details as compared to chemistry. Chemistry में सिर्फ ये दिया है कि solid state में ये defects create करता है, that is called doping. Clear? So physics में ये terms फिर से मिलेगा, details में मिलेगा, और बहुत सारा वहाँ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स भी मिलेगा. बट केमिस्ट्री में याद रखना है, डोपिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी एड सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स और सम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इन एनी सेमीकंडक्टर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स कंडक्टिविटी. या तो डिक्रीज करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए, दोनों तरह से बनाया जा सकता है. इंक्रीज करना मतलब आज ऐसा कंडक्टर्स बनाया दैट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स. दैट मीन्स इट्स कंडक्टिविटी पावर इज ग्रेटर देन मेटल्स. मेटल से भी ज्यादा कंडक्टिविटी ग्रेटर है, हवा में वो कंडक्ट कर सकता है फ्रेंड्स. सो दैट आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स. एंड आल्सो न्यू रिसर्च सेज दैट द लिक्विड्स व्हेन अ प्लास्टिक रॉड or plastic wire is dipped inside this liquids, then this plastic wire acts as the conductors and high conductivity value. तो ऐसा रिसर्च हो चुका है, और हम लोग देख ही रहे हैं कितना जो पतला वायर रहता है, प्लास्टिक जैसा वायर रहता है, उसमें भी कंडक्टिविटी कैरी करता है. यदि हम लोग देखें माइक्रो एसडी कार्ड्स या फिर बहुत सारा छोटा डिवाइस है हेडफोन वगैरह में, तो ये सब चेक कर सकते हैं आजकल. ये सब काफी ज्यादा फिजिक्स का रिच ब्रांच है, जो भी इस 2 और 3 डेकेड्स में काफी ज्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स हुआ है इस पर. सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट species. So electron rich species is called N type semiconductor and electron deficient species is called P type semiconductor. तो इसका दो अलग अलग नाम है. N type semiconductors क्या है, P type semiconductors क्या है. फिजिक्स में तो ये डायग्राम के साथ अच्छा से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ डेफिनेशन केमिस्ट्री में भी करना है. तो N टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, P टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप. सो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी मतलब नेगेटिव टाइप हो गया. इलेक्ट्रॉन रिच है तो नेगेटिव होगा ही, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज.
So electron rich impurities are called n-type semiconductors. So what is n-type semiconductors? See in this paragraph. So silicon and germanium belong to group number 14. Silicon germanium दोनों group number 14 का elements है of the periodic table and have 4 valence electron each. क्योंकि कार्बन फैमिली का मेंबर है तो कार्बन जब टेट्रावेलेंट होता है तो इसमें भी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 4 बॉन्ड बना सकता है शेयर करके. In their crystals, each atom form 4 covalent bonds with its neighbors. When doped with a group number 15 elements like phosphorus or arsenic. यदि इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम में फॉस्फोरस या आर्सेनिक का डोपिंग करते हैं, फॉस्फोरस मतलब हो गया ग्रुप नंबर 15, आर्सेनिक भी उसी का मेंबर्स है. Which contains 5 valence electron, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा क्योंकि 4 के साथ बॉन्डिंग होना चाहिए, 4 और 5 के साथ तो नहीं हो पाएगा तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. They occupy some of the lattice site in silicon और जर्मेनियम क्रिस्टल्स. तो अब फॉस्फोरस और आर्सेनिक सिलिकॉन या जर्मेनियम में कहीं जाकर के वो डोपिंग हो जाएगा, वो कहीं लेटिस साइट्स में जाकर के सेट हो जाएगा. 4 out of 5 electrons are used in the formations of 4 covalent bonds. तो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन लेकिन 4 बॉन्ड बना सकता है सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम भी 4 इलेक्ट्रॉन रखता है और ये कोवलेंट नेचर का है. With the 4 neighboring silicon atoms, the 5th electron is extra. तो यही काफी इंटरेस्टिंग है, जो फॉस्फोरस या आर्सेनिक का 5th इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा है. This 5th electron is extra and become delocalized. So delocalized means मूव करना, घूमना, इधर उधर चलना. तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कंडक्शन होगा. These delocalized electron increases the conductivity of doped silicon or germanium. Clear? Here the increase in the conductivity is due to negative charge electrons. Hence silicon doped with electron rich impurity is called n-type semiconductors. तो n-type semiconductors इतना आसान है कि हर किसी को समझ में आ जाएगा. मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम में फॉस्फोरस या आर्सेनिक का डोपिंग, ग्रुप 14 में ग्रुप 15 का डोपिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज और इट इज आल्सो कॉल्ड n-type सेमीकंडक्टर और नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स. तो ये कंडक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा. क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है. सीधा सेकंड वन that is called electron deficient impurities. तो electron deficient impurities मतलब positive type p type semiconductors. तो see what is p type semiconductor. Silicon और germanium can also doped with group number 13 elements like boron, aluminum और gallium. तो 13 से भी वो डोपिंग कर सकता है जिसमें 13 एलिमेंट्स होगा. तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा क्योंकि 2, 8 और 3. Which contains only 3 valence electrons. The place where the fourth valence electron is missing is called electron hole or electron vacancy. तो यहाँ hole या vacancy create होता है electron missing से. An electron from a neighboring atoms can come and fill the electron hole. Neighboring atom मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम वाला आकर के उसमें होल में फिलअप हो जाएगा. But in doing so it would leave an electron hole at its original positions. If it happens, it would appear as if the electron hole has moved in the direction opposite to that of the electron that filled it. Under the influence of electric fields, electrons would move towards the positively charged plate through electronic holes, but it would appear as if electron holes are positively charged and are moving towards the negatively charged plate. These types of semiconductors are called positive type या p type semiconductors. तो यहाँ दोनों का एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, सी n टाइप एंड p टाइप सेमीकंडक्टर्स. तो हम लोग देख पा रहे हैं दोनों डायग्राम, तीनों डायग्राम को अच्छा से देखो. तो अब ये तीनों डायग्राम
फर्स्ट इज सिलिकॉन एटम दैट इज परफेक्ट क्रिस्टल। तो सिलिकॉन भी सॉलिड क्रिस्टल में ही पाया जाता है, हालांकि जब उसका कम सब्सटेंस बना दिया जाता है तो अलग अलग वैरायटी में आ जाता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स सेकंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में यदि आर्सेनिक डाल दिए तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं वॉइड में जाकर के छुप जा रहा है, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स देयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, कंडक्शन बैंड में वो जंप कर सकता है। एंड सी द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, द लास्ट डायग्राम में दिख रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है पॉजिटिव होल नो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन्स इन द पेयर, या तो लोन पेयर या तो बॉन्ड पेयर, बट हियर नो पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। क्लियर? दैट्स व्हाई हियर देयर इज अ मिसिंग, एक इलेक्ट्रॉन्स का मिसिंग है, तो कंडक्टिविटी थोड़ा सा घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? प्रोटॉन के कारण, एक्स्ट्रा प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर याद रखना है। एन टाइप क्या होता है? जब कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम में फास्फोरस ग्रुप नंबर 15 वाला एलिमेंट्स डोप किया जाता है। 14 में 15 का ऐड करना एन टाइप, और 14 में 13 का ऐड करना पी टाइप। वेरी सिंपल, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर्स, तो डायोड बनाने में इसका काफी ज्यादा यूज है। बहुत सारा डायोड होता है, बहुत सारा गेट होता है, फिजिक्स में पड़ेगा एंड गेट, नॉर गेट, नंद गेट्स, बहुत सारा वो सब है, तो हम लोग केमिस्ट्री में उतना एप्लीकेशंस नहीं करते हैं। तो एप्लीकेशंस से डायरेक्टली देख लेते हैं, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लास्ट टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। सो एप्लीकेशंस ऑफ एन टाइप्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, वेरियस combinations of n type and p type semiconductors are used in making electric components। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जैसे स्मार्टफोन्स है, टीवी है और बहुत सारे गैजेट्स हैं, वो सब में इसका प्रिपरेशंस में काफी ज्यादा यूजेस है। ठीक है। डायोड इज अ combinations of n and p type semiconductors and is used as rectifier। so rectifier that is step up and step down ट्रांसफार्मर में जनरली इसका यूज होता है, तो उसको बनाने में इसका काफी ज्यादा यूजेस है। ट्रांजिस्टर्स आर मेड बाय सैंडविचिंग द लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द टू अदर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स NPN और PNP। सो इट इज कॉल्ड जंक्शन, NPN एंड PNP जंक्शन, जो फिजिक्स में मिलेगा, बहुत डिटेल्स में ये दिया हुआ है। Type of transistors are used to detect or amplify the radio or audio signals। तो रेडियो सिग्नल्स या ऑडियो सिग्नल्स को बढ़ाने के लिए, जैसे डीजे साउंड्स है, स्टीरियो साउंड्स है, स्टीरियो साउंड्स मतलब 3 डायमेंशनल मूव करने के लिए, साउंड्स बनाने के लिए NPN डायोड या PNP डायोड्स का यूज किया जाता है, जो 3 डायोड्स का मिक्सचर्स होता है, दोनों ऊपर में 2 अलग लेयर, और उसको सैंडविचिंग किया जाता है। सैंडविच मतलब समझ में आ रहा है, एक लेयर पर दूसरे लेयर, जो हम लोग सैंडविच घर में बनाते हैं या मार्केट से लाते हैं, तो उसी तरह से हम लोग डायोड्स का भी सैंडविच बनाते हैं। तो सैंडविचिंग द लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो जैसे सैंडविच बनाएंगे उसका, तो वो डायोड्स अब ट्रांजिस्टर्स के फॉर्म में यूज करना स्टार्ट कर देगा, जो साउंड्स को मॉडिफाई करेगा। क्लियर? जिससे बहुत सारा क्वालिटी का साउंड्स होता है। पहले तो हम लोग जानते थे कि डॉल्बी डिजिटल क्वालिटी काफी अच्छा होता है, आजकल तो उससे भी अच्छा बहुत साउंड सिस्टम आ रहा है जो काफी अच्छा साउंड क्वालिटी क्रिएट करता है। एक स्टूडियो साउंड्स स्पीकर का कॉस्ट मोर देन 5000 से 10,000 तक है। क्यों? क्योंकि उसमें ये क्वालिटी सैंडविचिंग काफी अच्छे से किए जाता है, जो साउंड्स का क्लियरिटीज को और नॉइज कंट्रोल्स को अगेंस्ट में वर्क करता है। The solar cells is an efficient photodiode used to conversions of light energy into electrical energy। तो सनलाइट के फोटॉन्स को आजकल बैटरी में स्टोर करके रखा जाता है, और उस बैटरी से हम लोग घर का बहुत सारा इलेक्ट्रिकल गैजेट चला सकते हैं। आजकल तो इतना हाई पावर का ये सोलर सेल्स आ गया है, जिसके थ्रू से मोटर भी चलता है, ट्यूबवेल भी चल सकता है, कार भी चल सकता है, ट्रक भी चल सकता है, बसेस भी चल सकता है। बहुत सारा डेवलप्ड कंट्री में जैसे
जर्मनी है, फ्रांस है, वहां तो कार और बस चल रहा है, अमेरिका है ट्रक चल रहा है, बट इंडिया में अभी इम्प्लाई नहीं हुआ है, बट नेक्स्ट डेकेड में ये इंडिया में भी आ जाएगा। वो सिर्फ इंडिया का भी कार कंपनी इलेक्ट्रिकल कार बना चुकी है जिसमें से ये सेल का यूज किया जाता है, फोटोडायोड सेल्स। तो यहाँ भी एक यूजेज है इसका। Germanium and silicons are group 14 elements and therefore have a characteristics valence of 4 and form 4 bonds as in diamonds। तो जर्मेनियम सिलिकॉन जो ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स है वो कैरेक्टरिस्टिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 4 जो डायमंड जैसा टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर्स बना सकता है। A large variety of solid state materials have been prepared by combinations of group number 13, 14 or 12, 16 to simulate average valence of 4 as germanium or silicon. Typical compounds of group number 13, 15 say indium and Sb, aluminum phosphide, gallium arsenides। तो ये सब कुछ टिपिकल कंपाउंड सॉलिड स्टेट का है जिसको अलग तरीके से बनाया जाता है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड्स, गैलियम आर्सेनाइड्स। गैलियम आर्सेनाइड्स सेमीकंडक्टर्स हैव वेरी फास्ट रिस्पांस एंड हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड द डिजाइंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो ये लेटेस्ट डिस्कवरी है, मॉडर्न ये सब यूजेज है जो काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ZnS जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड और कैडमियम सेलेनाइड्स, मर्क्यूरिक टेलिराइड्स are examples of group number 12, 16 compounds. In these compounds the bonds are not perfectly covalent and the ionic characters depends on the electronegativity of the two elements। तो यहाँ कोवेलेंट करेक्टर मतलब शेयरिंग करके बन रहा है, सिलिकॉन है ऐसा जरूरी नहीं है, मेटल है तो इसको हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स भी ले सकते हैं या फिजन्स रूल्स के अकॉर्डिंग पोलराइजेबिलिटी को भी देख सकते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न दैट ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स शो मार्क्ड डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। टिटेनियम ऑक्साइड्स, क्रोमियम ऑक्साइड्स, uranium oxides behaves like metals। uranium oxides is like metallic copper in its conductivity and appearance। तो ये ऑक्साइड्स भले ही है यूरेनियम का ऑक्साइड्स है बट ये कॉपर मेटल की तरह कंडक्टिविटी शो करता है, मतलब काफी ज्यादा कंडक्शन रहेगा इसमें। so certain other oxides like VO, VO2 and VO3 before vanadium, तो vanadium oxides, vanadium dioxide, vanadium trioxides and titanium oxides shows metallic or insulating properties depends on temperature। तो ये temperature dependent होता है, metallic भी करेगा insulating भी करेगा। so last that is magnetic property। तो magnetic properties मतलब magnetic property यहाँ solid state में 3 types का मिलेगा, mainly 3 types का होता है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। जो क्लास 11 में पढ़ा हुआ है वही चीज का रिपीटेशन है। सो सीधा पैरामैग्नेटिज्म, यहाँ पैरामैग्नेटिज्म दिया हुआ है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। डायमैग्नेटिक स्मॉल एनर्जी के साथ अट्रैक्शन नहीं, डायमैग्नेटिक रिपल्शंस करेगा बिकॉज ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल आर पेयर्ड। और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स में ये पाया जाता है, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक ये ना रिपेल ना अट्रैक्ट करेगा, फेरोमैग्नेटिक भी ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन करेगा। तो पैरामैग्नेटिज्म कौन कौन सब्सटेंसेस को कर सकता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, डायमैग्नेटिक जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, फेरोमैग्नेटिक लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हम इसका नोट्स दे देंगे, इसको बस थोड़ा सा स्टडी कर लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार इसको रिकॉल करा देंगे। और ये एलिमेंट्स है इलेक्ट्रॉन्स का, ये फेरीमैग्नेटिज्म है, ठीक है। देख सकते हैं किसे इलेक्ट्रॉन्स रहता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। और फिर क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर तो तुम लोग खुद जमा करना है लिख करके कॉपी में।
तो ऑफिशियल ऑर्डर है सीबीएसई का भी है, न्यू कुछ इम्प्लीमेंटेशन रहते रहता है, और सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन पैटर्न उनके लिए बोर्ड्स में। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन से डिफाइन द टर्म्स एमोर्फस, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स। सो टाइम इज